Okay, children. So now we will discuss today's Junior CBSE NEET Co-Spark program question paper, right? Yes, sir. So because we have to discuss only chemistry paper, so let me go to the question paper, right, beta? So this is your first question. I think you can able to solve it. Yes, sir. Okay. So what is the situation, children? I think we have solved this question in during our class time. Yes, it was in Narayana material. Yeah, this is carbon having three hydrogen, one hydrogen like this, and again hydrogen bonds are there, and this is means okay, three triple bond. So children, in this molecule you can see one, two, three, four. Four pi bonds are there, children. Do you find anywhere pi bonds four? Yes. So Option this will 3. be the correct one, right? If you Yes, sir. want to make more means if you want more surety, 1 2 3, okay, uh 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19, I think 19 sigma bonds. So this one is the correct one, right, beta? Yes, sir. Please write down the question number, children, 46, and make option 3 is the correct one. Write it so that we can check the key also. Okay, sir. Which statement is not correct? A sigma bond is weaker than pi bond. It is incorrect because sigma bond is stronger. A sigma bond is weaker than pi bond. No, it is a correct one. Okay, children? Is it correct or incorrect? Tell me. So it's incorrect. Sigma bond is actually stronger than pi bond. So sigma bond is stronger than pi bond. This is the correct statement, and this is the incorrect statement, right? Yes, sir. A double bond is stronger than sigma bond. Yes, it is correct. A double bond is shorter than single bond. Yes, this is correct. So correct. But they told you to find out which one is not correct. So our option is first one, right? Yes, sir. Question number 48. Covalency for the central atom is maximum in maximum in. Tell me where. Second option. Second option, right? Yes, sir. Okay, here maximum valency is 2, maximum valency is 5, maximum valency is here 3, here maximum valency is 6, children. Okay, any doubt please let me know. Okay, S Okay. double bond O, write that Cl. So number of bonds means number of valency, right? Right. So write down question number 48, 47, 46 like this. And write down the option also so that we can immediately check out the key also. Shall I move to the question number 49? Okay, sir. Yeah, if anybody has some doubt also, they can discuss with me. Only triple bond is present in 4. N2. Which of the following is not a property of covalent compound? They have low melting point. Yes, it is the property. They are not electrical conductors. They are not electrical. Yes, this is also a property of covalent compound. They exhibit space isomerism. Yes, this is also they undergo chemical reaction quickly. No. Slow. So which is not a property. This one is not the property. 54th option, right? Right, sir. Number of electron pairs present in the valence shell of the central atom, SF6. How many pairs? 6 pairs. Hmm. Question number 52. An element forms compound of formula ACl3A2O5 Mg3A2 but does not form ACl5. Then A would be. Wow. What a question. Okay. Did you understand, children? Then element forms compound of formula ACl3 means its valency is 3, A2O5. Okay. Mg3
A2. Okay, so I think this is possible only because ACl5 is not formed. This is only possible when they don't have d orbital. Okay, and they are having this formula with magnesium, means having 3 valency. So the best one is I think fourth one, right one, children. Yes, sir. What is the problem in phosphorus? Phosphorus can form PCl5. Okay, children. Yes, sir. If if it is boron, it will form B2O3, not A2O5, right? Yes, sir. Yeah, and Yes. it will form BCl3, not BCl5. So this can't be. Some reason it can form be like this. Aluminium can't form this compound, children. Okay, right, beta? Right, sir. So fourth one is the correct option. Please note down the options. So immediately we will correct the keys also. The number of type of bond between two carbon atom in calcium carbide. Okay, calcium carbide. So carbide CC. This is negative bond. This is negative bond. So between two carbon atom, 3 bonds are there, children. In that 1 3, sigma 2 pi. 1 sigma and 2 pi, 1 sigma and 2 pi, 1 sigma 1 pi, no, 2 sigma, my god, 2 sigma between two atoms. Only 1 sigma is there. I hope 53 first one is the correct one. PCl5 exists. Do you know excited state of phosphorus? But NCl5 does not show the excited state because they don't have d orbitals. Yes, sir. So PCl5 exists, the comma is actually here, but NCl5 does not form because nitrogen have no d vacant orbital. Does not because NCl5 is unstable. No, d orbital is not there. Much smaller, that is not the problem. Higher electron, no, that is not the problem. The problem is it don't have d orbital, so it cannot expand. Did you understand, children? Yes, sir. How many of you have did this one correct? Yes, sir. I have done. Very good. In I question, have also done. very nice, beta. Very nice. Very nice. In question number 55, children, in nitrogen molecule, the atoms are bonded by 1 sigma, 2 pi bond. Yes, this is correct. 2 Yes, sir. lone pairs. So we have to see nitrogen like this, children. So yes, 2 lone pairs are there. I am very comfortable with the first one. 2 sigma bond, my god. 1 sigma 1 pi only, 1 sigma and 2 pi and no lone pair. Who is telling like this? What they think? What they think? See, which one is the correct option, children, for 55? 55 is first option. Yeah. First option. Two element X and Y have following electronic configuration. Which one is the 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s2, right? I think 4s2 means it is calcium. So it will have 2 valency, right, beta? Y, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, so it may be it is halogen. Halogen is having 1 valency, right, beta? Yes, sir. So Ca and X, what will be the formula? Calcium is having 2 valency, halogen is having 1 valency. CaX2. First option. So calcium is X, not Y2. X2, CaY2 actually. So in calcium and Y2. XY2 anywhere is there? Yes, sir. First option. First option. Did you understand, children, what I am doing? Yes, sir. Valency of sulfur in sulfuric acid 6. Odd electron bond is present in all. All. Number of electron pair involved in the formation of hydrogen cyanide. Number of electron pairs involved in bond formation 4 beta. Most covalent halide aluminium. Most covalent halide of aluminium is Aluminum iodide. Second option.
Did you understand? Same positive charge is there. Same positive charge. Greater will be the, bigger will be the anion, more will be the covalent. Second option. Iodide is more bigger than bromide, is more bigger than chloride, is bigger than fluoride. Did you understand? Yes, sir. More is the bigger size, more is the covalent character. Fajans rule. This is based on Fajans rule. Please, if you have any problem, let me know. If a hello, yes, I am speaking. Just 25 minutes में फ्री हो जाऊंगा. ओके, प्लीज प्लीज. हाँ हाँ, आइए. So in question number 61, if a bond is made up of large number of organic compound, then the bond is termed as. एक बार सुनने दो. Covalent bond. If a bond is made up of large number of if a bond is made up of large number of organic compounds, then the bond is termed as organic compound. If a bond is made up of large number of organic compound, if a bond is made up of large number of, then the bond is termed as. If a bond is made up of large number of, then the bond is termed as. If a bond is made up of large number of organic compound, देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा है, तब ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ज्यादा जो बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. राइट बेटा? Yes, sir. ना आयोनिक बॉन्ड होते हैं, ना मेटेलिक होते हैं. डेटिव बॉन्ड मैम आई विल कॉल यू बैक. I will call you back. I am in online class. Call you back. I think so there is a problem in question number 61. Please note it down. Make a point on 61. Right, beta? Hello? Yes, sir. Children, don't create noise. Some sound is coming. What this is a question. If a bond is made up of large number of organic compound, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उनके बीच कोई बॉन्ड बना हुआ है. If a bond is made up of large number of organic compound, then the bond organic, is. हाँ बेटा. सर ऑर्गेनिक में तो शेयरिंग होता है सर. ऑर्गेनिक में तो शेयरिंग होता है. Okay, if a bond is made up of, if a bond is there and it is made up of large number of organic compound. Okay, ऑप्शन इज कोवेलेंट कंपाउंड. एक्चुअली ये क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होना चाहिए था मालूम है? डू यू नो व्हाट शुड बी द लैंग्वेज? हाँ, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. राइट? यस सर. हाँ, yeah, language problem in the question, but anyhow we can understand the feeling of the question framer. Okay, so we'll give 61 first one. The polarizing power is maximum for which of the following ion? बेटा, किसमें polarizing power ज्यादा होगा? Al3 plus. Which one बेटा? Cesium plus में तो पहले बात नहीं होगा, ये सबसे बड़ा, इसको हटा दो, है ना? ठीक है. फिर आता है सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम. राइट बेटा? यस सर. फिर सोडियम के नीचे पोटासियम आता है, इसको हटाओ. राइट बेटा? गॉट? मैग्नीशियम के इस साइड में है तो ये और छोटा है, एल्युमिनियम के ऊपर +3 भी है, छोटा भी है. So aluminum will win the match. Magnesium lost the game. I think 62 option 4 is the correct according to Fajans rule.
आ गया बात समझ में? यस सर। Yes. कौन कौन मारा 4 में? मैंने मारा सर। बहुत बढ़िया किया बेटा। वैसे मारपीट करना नहीं चाहिए, लेकिन मार दिया तो अच्छा ही किया बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 63, polarization power of a cation increases when Fajans rule. First option. Change Charge on on the cation increases. Yes. Size of the cation increases. I object, honor my milord. I object this one. Charge of the cation decreases. I object. Has no relation. No, I object. There is a relation between the size and charge. So चार्ज बढ़ते जाएगा तो पोलराइजेशन पावर बढ़ते जाएगा। फजांस रूल। कौन कौन सही मारा बेटा? यस सर सही। ठीक है बेटा, ओके। जो रॉन्ग वो किया वो भी कर ले, बता देना बेटा, मेरे को सच्चाई मालूम होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। हाँ, टेंशन मत लेना बेटा, एक बार कम आ जाएगा, लेकिन फिर जब सिखा देंगे तो दोबारा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ओके? तभी तो हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। चलिए 64 में मैक्सिमम कोवेलेंट नेचर कैन बी सीन इन अगेन फजांस रूल। अब इसमें देखो, देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बहुत गजब वाली बात क्या है मालूम है? कि इसमें बोला है आयन एनायन जितना बड़ा होगा बेटा, है ना, ओके, उतना अच्छा रहेगा, ओके? तो एनायन सबसे बड़ा तो इसमें है बेटा, तो इसको हटा दे बेटा, सीजियम इसको तो हटा देते हैं। हेलो बेटा? यस सर। Yes. हाँ, और मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, लेकिन इसके ऊपर तो -1 है एक, और इसका तो साइज भी बहुत छोटा है। इनमें मैक्सिमम पूछा है तो थोड़ा बहुत कोवेलेंट नेचर होगा, लेकिन मैक्सिमम तो भैया इसी में होगा, लिथियम आयोडाइड में, राइट? राइट सर। According to Fajans rule, covalent bond is favored by smaller cation and large anion. 100% correct. Smaller cation and smaller anion. Na. Large cation and large anion. Oh no. Large cation and small anion. No, babu. 65 का first one is the correct. किसने first को correct बोला है? हेलो बेटा? यस सर, शायद सर ये करेक्ट दिया है सर। यही करेक्ट ऑप्शन है ना? हाँ सर। ओके, द फॉर्मल चार्जेस ऑन 3 ऑक्सीजन एटम इन ओजोन मॉलिक्यूल। समझ गए? ओ याद आ रहा, मैंने कितनी बार करा दिया था बेटा, ओके? ठीक है, तो तीनों में 0 रॉन्ग है बेटा, 2 में 0 रॉन्ग है, 2 में 0 रॉन्ग है बेटा, 1 में 0, 1 में प्लस, ये करेक्ट है बेटा, ओके? ठीक है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 याद कर लेना थोड़ा, जो ओजोन का जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर वगैरह बना के देखा था ना, उसमें देख लेना बेटा, याद है मैंने इमेजिनरी लाइन बनाया था? हाँ सर। एक पे 0 आया था, एक पे +1 आया था, एक पे -1 आया था। इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द फॉर्मल चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ नाइट्रोजन एटम इज। वाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये अकेले नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 होते हैं ना? हेलो? यस सर। हाँ, इमेजिनरी लाइन टापा, इमेजिनरी लाइन, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है। अब नाइट्रोजन में 5 होते हैं बेटा जब वो फ्री स्टेट में रहता है। अब देखो जब मॉलिक्यूल हो गया तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना बेटा? तो एक एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं? जब एक एक्स्ट्रा आ गया तो -1 आएगा बेटा, -1 आएगा, +1 नहीं आएगा तो रॉन्ग हो गया, +1 ये रॉन्ग हो गया। अब ये 2 के बीच में मुकाबला है, ओके? हाँ सर। ओके, अब देखो थर्ड वाले में देखो बेटा, थर्ड वाले में 5 होना चाहिए था, लेकिन 1 2 3 4 5 6 है, -1, तो ये वाला सही है बेटा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर 5 होना चाहिए था लेकिन 4 है, इसका मतलब इसके ऊपर +1 है, राइट? यस सर। ऑप्शन सेकंड वन इज करेक्ट।
ओके, यस सर। किसने किसने सही किया इसको? सही किया सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 68. In PO3, the formal charge on in oxygen atom is OOO, PO4 माइनस माइनस माइनस। ओके बेटा, डबल बॉन्ड। फॉर्मल चार्ज का मतलब समझ रहे हैं? फॉर्मल चार्ज पूछा है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन करेंगे, सबके साथ तो एक ही होगा। तो इनके पास 1 2 3 4 और माइनस से तो 6। सबके ऊपर ऐसा नहीं लग रहा है कि एक एक माइनस है बेटा? हेलो, यस सर। लेकिन एक्चुअल में 3 माइनस है बेटा, है ना? हेलो, यस सर। लेकिन ना इसमें चूंकि 4 ऑक्सीजन है तो हम लोग को एवरेज देना है, एवरेज। ठीक है बेटा, एवरेज दोगे तो 4 से डिवाइड करोगे। हाँ सर। 3/4 को क्या बोल सकते हैं? 0.75 बोल सकते हैं। हाँ सर। तो माइनस चेक करो तो एक बार आंसर। यही है सर। ईच हाँ पूछा है, सर। ईच। अगर टोटल भी पूछा होता तो हम लोग कुछ सोचते उसते, प्लस उलस की तो बात ही छोड़ो। इसको थोड़ा देख लेना है ना, इसमें अभी हम लोग की चेक करेंगे ना तो थोड़ा देख लेंगे। सर We can माइनस check. 0.75 ही है। कितना है? माइनस 0.75। यस सर। वेरी सर नाइस। 74 नंबर बता दीजिए ना। 74 डायरेक्ट है 74 में। यस एक सर। बार 69 चले जाते हैं। एसपी ओवरलैपिंग प्रेजेंट इन एसपी, एसपी इसमें पीपी, अच्छा। इसमें एसएस, इसमें पीपी, इसमें एसपी। ओके, अच्छा होगा। यस सर। 70 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? A थर्ड pi ऑप्शन। bond is formed when a sigma already exists. पाई बॉन्ड तो तभी बनता है जब Correct. पहले एक सिग्मा हो। ए पाई बॉन्ड में बी फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी और डी ऑर्बिटल, ये भी करेक्ट है। ए पाई बॉन्ड इज फर्स्ट फॉर्म बाय द सिग्मा बॉन्ड। No. हाँ, इनकरेक्ट है। ए इनकरेक्ट है। ए पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द लेटर लिंक, ये करेक्ट है। पूछा क्या था? Incorrect. इनकरेक्ट। तो थर्ड वन। Which of the हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन टेट्रासाइनोइथाइलिन? टेट्रासाइनोइथाइलिन का मतलब होता है इथाइलिन। हेलो बेटा, Yes sir. ये देखो, इसको कहते हैं साइनो ग्रुप बेटा। 4 बार है इसलिए टेट्रा। और कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो कॉमन नाम में उसको इथाइलिन बोलते हैं बेटा। गिन लो कितना है, पहले तो पाई बॉन्ड है, गिन लो ना। 2 यहाँ, 2 यहाँ, 4 5 6 7 8 9। 9 पाई बॉन्ड कहाँ पर दिया हुआ? 9 पाई बॉन्ड इसमें भी दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ। 8 पाई बॉन्ड, ये सब हटाओ। सही में 9 है ना? 2 4 6 8 और एक 9। यस। हाँ सर। सिग्मा बॉन्ड चेक करो। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट वन इज द करेक्ट, राइट वन। Yes sir. ठीक है। 71 का 1 किसने मारा? मैंने मैंने। मारा। बहुत बढ़िया किया। ठीक है। 72 याद है, मैंने दिखाया था ये वाला। हाँ सर। क्या करके दिखाया था, याद है? हेलो, पढ़ाते समय मैंने इसका डेमो दिया था। यस सर। Yes sir दिया था। हाँ, मैंने क्या क्या चीज बर्बाद किया था उसके लिए मेरे साथ बहुत ये भी हुआ था, मैंने सुना भी बहुत। नाम मेरी का हाँ, mistake, मैंने island बर्बाद में। कर दिया था। फिर मेरे को नया लाके देना पड़ा था। ठीक है, अब देखो, क्या ये ओवरलैपिंग सही है बेटा? हाँ सर। सही है। Yes. ये यस। सही है सर। सही है। नहीं नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ओवरलैपिंग? अच्छा, जीरो ओवरलैपिंग बताना है बेटा। ओके, हेलो। Yes sir. यस सर। जीरो ओवरलैपिंग, यहाँ पे तो अच्छा खासा ओवरलैपिंग है। यहाँ भी ओवरलैपिंग है, प्लस प्लस है। और यहाँ भी थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग हो सकता है। मैंने कहा था ना, ये टर्न हो सकता है। ठीक है बेटा।
जीरो ओवरलैपिंग तो इसमें एकदम ऑपोजिट हो रहा है, राइट बेटा? Yes, sir. तो बेटा किस में टिक मारे? Fourth option. फोर्थ ऑप्शन में। हम लोग सोच रहे हैं इसमें नहीं होगा। सर की में भी फोर्थ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। बाप रे, हाँ सर। की में हालांकि ये दोनों पॉसिबल था ना बेटा इसमें। और शायद मटेरियल में भी दिया हुआ है। मटेरियल जीरो फोर्थ ही दिया ना, यस सर। लेकिन ओके, ऑब्जेक्शन इज देयर बेटा। चलो 72 का है ना, 72 का some problem is here beta. Anyhow, let us see 72 का एक ऑब्जेक्शन, थोड़ा 72 में अंडरलाइन करके रखो बेटा। ओके सर। हाँ, the strength of bonds by 2s 2s 2p 2p 2s 2p 1s 1s overlapping has the order। बताओ बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ ओवर, 1s पहले होगा कौन सा ओवरलैपिंग एकदम स्ट्रांग होगा बेटा? सर। 1s वाला तो सबसे पहले, सबसे और एक ही स्ट्रेंथ, ऑप्शन दिया हुआ है। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ही दिया हुआ है। द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स बाय फिर पी फिर एसपी। चेक करो तो आंसर बेटा। सर इसका आंसर भी फर्स्ट ही दिया हुआ है। चलिए तब विल गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन ओनली। अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी द बॉन्ड्स इन मीथेन आर फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ। हालांकि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं पढ़े, राइट बेटा? यस सर, इसीलिए रॉन्ग हो गया। हाँ, तो लेकिन ये बाय ओवरलैपिंग ऑफ एक हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और s से होता है बेटा। ऑप्शन 4 करेक्ट है, राइट? पर सर की में दूसरा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक मिनट बताते हैं। अगर वीबीटी फर्स्ट ऑप्शन। हाँ सर, ये रॉन्ग दिया है सर। नहीं, अगर देखो यहाँ भी थोड़ा सा हमको लग रहा है जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं ना तब तो ये आ जा रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल समझे तो कार्बन के अंदर ये 2s है, ये 2p, ये भी 2p, ये भी 2p, और हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाएगा वो तो s से ही बनाएगा। तो ये s है, ये p है, ये p है, ये p है, ये s है, ये s है, ये s है, s s। गलत है सर, गलत है तो सर, गलत है बेटा ये क्वेश्चन, मतलब ये सर समझ में नहीं। हाँ नहीं, देखो एक जो सिंपल अगर बिना हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट लगाए अगर हम देखें तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा। कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर है। कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा। यस सर, अगर यस सर। बिना हाइब्रिडाइजेशन, चलो मान लेते हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़े हम लोग, नहीं हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, तब तो जो बॉन्ड बनेगा वो एक ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड में कौन कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रहा है? हेलो हेलो बेटा। यस सर। तो सब तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इस सिग्मा में यहाँ भी s है और यहाँ भी s है। हाइड्रोजन का तो s ही है ना, यस। s। हमको लग रहा अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिया होगा तो वो फर्स्ट वाले को मारा होगा। क्लिक चेक करो तो एक बार आंसर। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है की में दिया हुआ फोर्थ है। किए हुए थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा
मिस्टेक नहीं करना चाहिए था क्वेश्चन फ्रेमर को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही तो लास्ट में जाकर हाइब्रिडेशन भी बोल ही रहा है वो। ठीक है बेटा, तो बोथ आर करेक्ट। तो 74 को एक बार चेक करो, हम बोलेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ आर करेक्ट। ओके बेटा, सर जो नो वन सर मारा वो भी करेक्ट है और जो फोर्थ मारा वो भी करेक्ट है, राइट बेटा? नो सर यस सर। हाँ, इसको थोड़ा सा आपको याद दिलाना, इसको करेक्शन कराना है बेटा। नो सर अच्छा, और एक प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये तो नहीं होगा है ना, ये भी। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन में ये 2 सिग्मा एस बता रहा है बेटा, मतलब ये 2 सिग्मा एस मतलब 2 तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और 3 तो ऐसा, 3 2 5 बॉन्ड, ये गलत है ना। ठीक है बेटा, या तो फर्स्ट नहीं तो फोर्थ। ओके, तो 74 में 2 ऑप्शंस का करेक्ट रखो बेटा, 1 एंड 4 दोनों करेक्ट है, राइट? ओके सर। सर 82 नंबर भी बता दीजिए। नो सर नो सर कौन सा? नो सर नो सर चलो 90 का बोलो बेटा। 82 क्वेश्चन नंबर। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 90। न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट हैज 9 प्रोटॉन, इट्स वैलेंस वुड बी। हेलो बेटा, 9 प्रोटॉन One का होगा मतलब सर। एटॉमिक नंबर 1 फ्लोरीन है ना। हेलो, यस सर। Yes, sir. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ पॉलिंग एंड स्लेटर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। डायरेक्शनल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ पॉलिंग एंड स्लेटर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोलता है वो लोग? तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बारे में बोलता है ना, आयोनिक डायरेक्शनल तो बोलता ही है ना। यस सर, डायरेक्शनल। फिर हाइब्रिड का वर्ड यूज किया हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत है। चलो 88 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9 ग्राम ऑफ वाटर आर, बना लोगे? यस सर। हाँ sir. मोल कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, 9 ग्राम वाटर है, मोलर वेट 0.4 मोल है कि नहीं बेटा? तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 0.5 एवोगैड्रोस नंबर, राइट? 0.5 into हाँ, और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर होते हैं बेटा वाटर में? एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर होते हैं? 2। 0.5 into 2 कितना होता है? 1n, राइट बेटा? Yes, sir. यस सर। कहीं पर है क्या आंसर? हाँ sir. Option हाँ 1. सर, 1 है। हाँ 1 है। 87 का कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम आयन इज 4। 4। अमोनियम आयन बेटा H H H H, ये पूरा मिलकर के ना प्लस चार्ज होता है, 1 2 3 4, राइट? Yes, यस sir. सर। अमंग द फॉलोइंग मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर AlCl3, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, सब में हैलोजन है। द कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, इसमें कोवेलेंट, इसमें कोवेलेंट, हाँ इसमें 100% मतलब इसमें आयोनिक है, इसमें कैटायन और इसके बीच में आयोनिक है और इनके बीच में कोवेलेंट है ना बेटा? Yes, sir. स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द हेड एंड हेड ओवरलैपिंग, किसमें बेटा? S और P में या PP में या SP में या ऑल? PP ऑर्बिटल। द कार्बन लिंक इन एसिटिलीन, एसिटिलीन का मतलब यहाँ नॉर्म कॉमन नाम दे दिया बेटा, एसिटिलीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। द कार्बन लिंक इन एसिटिलीन कंटेन 1 सिग्मा 2 पाई, राइट बेटा? Yes, sir. यस सर। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग। विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट hypovalent but complete its octet? Okay, which of the molecule is not hypovalent but complete its octet? But complete its octet. हेलो बेटा, यस सर। क्या किया जाना चाहिए?
सर आंसर BF3 दिया हुआ है। विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट बट कंप्लीट इट ऑफ। ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, मतलब एक्चुअली BFF दे दिया है और यहाँ पर एक्चुअली इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास जो लोन पेयर होता है ना वो इसमें घुस जाता है, इसको बैक पाई बॉन्डिंग बोलते हैं, राइट बेटा? सर हाइपोवैलेंट क्या होता है? इज नॉट हाइपोवैलेंट। विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट हाइपोवैलेंट बट कंप्लीट इट ऑक्टेट। हाइपो का मतलब कहीं ना कहीं कुछ हमको लग रहा है कि एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है? हेलो? यस सर। हाँ, बट कंप्लीटेड ऑक्टेट। तो BF3 बैक पाई बॉन्डिंग होने से ये लोन पेयर एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। बाकी सब भी लोग कर सकते हैं लेकिन बड़ा एटम होने के चलते ओवरलैपिंग उतना अच्छा से नहीं हो पाता, राइट? हेलो? यस सर। हाँ, फोर्थ ऑप्शन, द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इन ओजोन बेटा +1, राइट? पढ़ाए थे ना ये वाला? यस सर। द जनरली पाई बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम लेटरल ओवरलैप ऑफ PP भी हो सकता है, DD भी। समझ गए बेटा? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 80 का ऑप्शन हो गया फोर्थ, राइट बेटा? राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डिविएट फ्रॉम ऑक्टेट रूल विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम? सभी होगा सभी लोगों वायोलेट करेगा। अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इज BCl5। BCl इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पूछा है बेटा, ओके? डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। गलती कर दिया ना? लेकिन ये सही हुआ था। नहीं बेटा, नहीं गलत हुआ था। 78 का फोर्थ ऑप्शन है। हाँ सर मैंने सही किया सर। 77 molecule which contain only bonded pair of electron on the central atom is, खाली बॉन्डेड होना चाहिए बोल रहा, लोन पेयर नहीं है इसमें, तो दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, इसी में लोन पेयर नहीं है, ठीक है बेटा? यस सर। यस। expanded octet can be observed in the valence shell of the central atom in expanded यही करेगा, यही एक साइड में चला जाएगा, d ऑर्बिटल है ना, उसी का भाव है, इसको तुरंत एक्साइट हो जाता है ना बेटा? यस सर। हाँ, ये लोग एक्साइट नहीं हो पाएंगे और हो भी पाएंगे तो बस इसके पास 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? ये 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर है, यही ऑक्टेट रूल को तोड़ देगा, एक्सपैंड कर देगा, ठीक है? द बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन BrCl इज, बताओ बेटा? पोलर विद नेगेटिव हाँ, Br और Cl है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? Br का ज़्यादा है कि Cl का? Cl का ज़्यादा है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, राइट बेटा? यस सर। तो कौन सा आंसर सही है इसका? फोर्थ ऑप्शन। चलो बन गया सब? यस सर। किसका पूरा क्लियर हो गया? हो गया सर। तो कितने का था क्वेश्चन पेपर? क्या सर? क्वेश्चन पेपर एक सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन था, मतलब मार्क्स था टोटल? 180 में किसका आया? 180 180 नहीं पता सर। किसका रॉन्ग हुआ? 2 एक तो मेरा 4 रॉन्ग हो गया। 4 रॉन्ग हुआ, 4 रॉन्ग, चलो 3 रॉन्ग किसका हुआ बेटा? 4 रॉन्ग में कौन कौन सा था? वो वाला ऑप्शन था क्या बेटा जो अभी हम लोग बात किए? एक तो ये 74 जो आपने वो करके रखा तो था, ठीक है, हाँ। एक वो, और एक जो मैंने अभी जस्ट रंग किया था, अच्छा। BCl3 वाला। वो क्यों रॉन्ग हो गया बेटा? इतना इजी था, जरा सा ध्यान नहीं दिए थे क्या? यस सर, और टाइम की वजह से हो गया। ठीक है, और कौन सा रॉन्ग हुआ था? 4 रॉन्ग में, चलो एक तो ये वाला हम लोग बात करेंगे कि इसमें 2 ऑप्शन सही है। 59 नंबर। 69
59. The number of electron pair involved in the formation of hydrogen, मतलब you didn't know the structure of hydrogen cyanide, right? Yes sir. ओहो, हालांकि क्वेश्चन था ये, आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग बोले भी थे बहुत बार, और मैंने ये बनाया भी था स्टडी आवर में या कभी भी। आंसर देना। चलो बाय बाय एवरीबॉडी। आई Bye, एक मिनट sir. रुको रुको रुको, एक बार जो की बनाया है वो एक बार की को चेक कर लेते हैं बेटा। चलिए की बनाया बेटा। सर, हाँ 46 जो का आया था वही ना। हाँ जो की दिया हुआ है आप लोग को, और जो हम लोग बनाए हैं अभी चेक किए। 46 का है की आपके पास? हाँ सर 46 का बोलो। 3 है सर। यस। 47 का? 1 48, 2 49, 4 50, 4 51, 2 52, 4 53, 1 54, 1 55, 1 56, 1 57, 3 58, 4 देखो पैर के पास है। 59, 4 60, 2 देखो आ ही रहा है तुम्हारे। 61, 1 62, 4 63, 1 64, 4 65, 1 66, 4 67, 2 68, 3 69, 4 70, 3 71, 1 72, 4 ओके 72 में भी थोड़ा देखेंगे 2 and 4, ठीक है 4 तो ज़्यादा ये है, लेकिन 2 में भी थोड़ा ये है। 73, फर्स्ट 74, 1 फर्स्ट फोर्थ 75, 4 76, 3 77, 3 78, 4 फोर 79, 4 80, 4 81, 2 82, 4 83, 1 84, 2 85, 86, 3 87, 3 87, 1 87, 87, 3 होगा 88, देखो गया गया। 89, 1 90, 2 90। 2 होगा चलो बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। आई बाय सर। सर। सबका हो गया अच्छा से, क्लैरिटी आ गया? हाँ सर। यस सर। ठीक है बाय बाय। देखिए कौन कौन था, चेहरा दिखाओ, कौन कौन है देखे, कौन कौन खाना वाना खाया? ओके तनुजा खाना खा ली, यस सर। ठीक है, और सयांतन भी खा लिया। कौन ग्रे कलर का शर्ट पहना है? कोई है ग्रे कलर में? मैचिंग मैचिंग, ओके। अरे वाह, कौन दिखे? अच्छा नहीं खाए, अच्छा कुछ स्टूडेंट खाना नहीं खाया। चलो जल्दी जल्दी खाना ना खाओ बेटा, फिर हम लोग मिलते हैं, फिर कल की क्लास के लिए मिलते हैं बेटा। हम लोगों ने सारा डाउट क्लियर कर लिया, किसी कोई भी दिक्कत होने से एक बार इसी चीज को मैं भी डाल दे रहा हूँ बेटा। शेयर करना, खूब लाइक करना, इसको आगे बढ़ाना बेटा। बाय बाय। बाय सर।